To address the annual 2022 of Delhi Public School Luncheon. My warm greetings and hearty welcome to Honorable the Chief Justice Dr. Ravi Ranjan, High Court of Jharkhand, India. He is a man of determination, great insight and vision promising hope for the future generation. A man of wisdom, he has been nominated by Honorable the Chief Justice of India as member of the Artificial Intelligence Committee. The committee has been constituted for the purpose of introducing, conceptualizing and implementing use of artificial intelligence in courts in India. I humbly welcome you, sir, and thank you for sparing your precious time to us. I also welcome our guests of honor, Honorable Mr. Justice Aparesh Kumar Singh and Honorable Mr. Justice Sujit Narayan Prasad, High Court of Jharkhand, for their generous gesture by spending the evening with us. I express my gratefulness to them for continuously working to protect the very spirit of democracy. I am profoundly honored to welcome the galaxy of learned and intellectual revered guests, Honorable Mr. Justice Dr. S.N. Pathak, Honorable Mr. Justice Anil Kumar Chaudhary, Honorable Mr. Justice Deepak Roshan, Honorable Mr. Justice Pradeep Kumar Srivastava. I modestly welcome all our guests, especially the better half of all the honorable judges. My welcome is extended to principals of various schools, ever supporting members of the school managing committee, parents, members from the electronic and print media, teachers, and my lovely students. Today is a wonderful day. It gives me immense delight to welcome you all on this significant day. It has been said and believed since long that for any great work to be done, it is important to have the right spirit. It actually enables us to work for the betterment of the society. This exactly stands true for the annual day of the school. The annual day of the school is the day on which we celebrate the talent and skills of our children. Our students year after year have demonstrated their abilities through academic and non-academic activities. We feel that without the outlet of their abilities, the entire teaching process is incomplete. So brace for a nice and unforgettable day. We are always ready to walk the unexplored path of success with immense commitment to action. I express my heartfelt thanks to the chairman of Big Society and members of the school managing committee who have added extra value to the school and helped me in contributing with confidence in the extraordinary growth of the school. We have traveled a long way. We have made all odds for more than 3 decades. Ever during the pandemic, we have not compromised with the philosophy of the school, which is education is the right of every child and it is a lifelong process attained through all-round development. Every effort is made to prepare future citizens of the globe. Our special features have been many, and to mention a few, I would like to state that we provide global collaboration for facilitating foreign education, proven vision and integrity in enhancing the leadership skills, unique human library to gain first-hand life experiences, international exchange programs. The school has a legal club that spreads awareness about the Indian judicial system.
जिमी कंस पर, त्यो मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। स्वामी जी, किताबों में तो मैंने पढ़ा है कि शिवाजी बहुत ही धूर्त, छिपके हमला करने वाला, ठग, खूनी और छल कपट करने वाला शासक था। फिर ये प्रशंसा पर पंक्तियां शिवाजी जैसे शासक के लिए क्यों लिखी गई होंगी? धिक्कार है आपका डॉक्टर राव, जरा संभल कर बात कीजिए। औरों का, गैरों का, अंग्रेजों का लिखा हुआ भारत का विकृत इतिहास हम पढ़ते हैं, परिणाम स्वरूप ये अज्ञान है। उन मूढ़ों की सोच भारत की सहानुभूति में नहीं है। हमारी संस्कृति, परंपरा, श्रद्धा आदि सभी से वे अपरिचित हैं, इसीलिए वे इनका आदर करना नहीं जानते। निजाम शाह, कुतुब शाह, इन सभी से हम मुक्त हुए, पर हमारे अंदर गुलामों को शोभा देने वाले दुर्गुण फिर से उभर आए। धर्म श्रद्धा टूट गई है, नास्तिकता फैली दुविधा में अटका मानव, दुविधा में अटका मानव। हे ईश्वर दया
आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरा अज्ञान दूर कर दिया। आप जैसे विद्या विभूषित सन्यासी की आज समाज को आवश्यकता है। आप कुछ दिन और हमारे साथ रहकर हमें सत्संग देने की कृपा करें। राजन, सन्यासी एक जगह अधिक समय नहीं रुक सकता। मुझे अब आगे जाना होगा। जिस सहानुभूति और प्रेम के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसे देखकर मेरा हृदय अकथनीय आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। साथ ही सब धर्मों का उगम स्थान कहे जाने वाले हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों महानुभावों की ओर से मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का गर्व है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित, शरणागत जातियों और विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत लोगों को आश्रय दिया है। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे गर्व है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन वो अब तक कर रहा है। ये सभा, जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सभाओं में से एक है, उसी मंच से मैं गीता के अद्भुत उपदेश को उद्धृत करना चाहता हूं, जो हमें बतलाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उनको प्राप्त होता हूं। संकीर्णता और इनसे उत्पन्न हुई भयंकर स्वधर्म विषयक उन्मत्तता ने इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज किया है। अगर ये सब न होता तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता, पर अब उनका भी समय आ गया है और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि जो घंटानाद आज सुबह इस सभा के सम्मान में बजाया गया, वो समस्त कट्टरताओं, तलवार या लेखनी के बल पर किए जाने वाले समस्त अत्याचारों और एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं के लिए मृत्युनाद सिद्ध होगा। भारत भूखा सैन्य देख अवतार लिया दुनिया में, दया क्षमा करुणा और साहस सदा रहा जीवन में। निर्भयता सामर्थ्य पूंजी दुनिया को दिखलाई, और अंधेरे में भी थी ज्ञान ज्योति सुलगाई।
दृढ़ पर, चीता मृग झुंड पर। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, मार्ग में कौन दिखाए, ये धनुष देखा न जाए, ये धनुष देखा न जाए। प्रभु कृपा करो, अब तुम ही सुन लो मेरी प्रार्थना। प्रभु कृपा करो, प्रभु Eres tú, ¿dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, dando sentido a toda mi vida con tu querer. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí.
चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मुंबो का मुंटा रे। जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशाहारा क्या मुंबो का मुंटा रे। विश्व को जीवन के रहस्य बताने वाला, उसे प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक महान देश। इसी मातृभूमि की उपजाऊ मिट्टी में कई संतों महंतों ने आध्यात्म और ज्ञान के बीज बोए। इन्हीं बीजों से कई वृक्ष उभर कर आए, जिनकी छाया ने अधर्म और अज्ञान की जला देने वाली धूप से विश्व की रक्षा की। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने पूरे विश्व को ज्ञान ज्योति से प्रकाशित कर दिया। गुरु रामकृष्ण परमहंस देव और शारदा माता से प्राप्त हुई शिक्षा और उनसे पाए हुए संस्कारों को स्वामी जी ने केवल स्वयं तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने पुण्य की, साधना की, सृजन की, इस अमृत अनुभूति की पूंजी देने हेतु अपने हृदय के द्वार सभी के लिए खोल दिए। जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, ऐसे सभी भेदों को मिटाकर उन्होंने सभी को एक साथ परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त किया। भारत माता को सम्मान दिलाने वाले इस सुपुत्र का, विश्व को ज्ञान रूप अमृत कण अर्पित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी का हम शत शत वंदन करते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।